ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن میں خوش آمدید۔ پی ایس ایل 9 کا پہلا ٹاکرا کچھ دیر میں قذافی اسٹیڈیم میں ہونے جا رہا ہے۔ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان یہ پہلا میچ آج ہونے جا رہا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم سے ہمارے نمائندے طلحہ اشرف ہمارے ساتھ ہیں۔ طلحہ بتائیے کیسی گہما گہمی ہے، شائقین کتنے پرجوش ہیں، انتظامات کیسے ہیں پہلے میچ کے حوالے سے؟ جو کہ شہر لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں، فیروز پور روڈ والا یہ گیٹ ہے، جبکہ شائقین کرکٹ کا جو کہ بڑی تعداد میں رش یہاں پر موجود ہے۔ پی ایس ایل کا بڑا ٹاکرا آج پی ایس ایل 9 کا پہلا میچ جو کہ لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جانا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد جو کہ اسٹیڈیم کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گیٹ پر سب کی چیکنگ کی جا رہی ہے، جو کہ سیکیورٹی کے بھی جو کہ فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پہ شائقین کرکٹ بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کہیں گے، ٹکٹ مل گئی نہیں ملی، کیسے دیکھ رہے ہیں شائقین؟ سر ٹکٹ مل گئی، ہم کو بس جانے لگے ہیں، دوست کا ویٹ کر رہے ہیں، بہت انجوائے کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پر ہم کو، بس جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ جی بالکل، مزید شائقین یہاں پر موجود ہیں۔ آپ کسے سپورٹ کر رہے ہیں، اسلام آباد کو یا لاہور کو؟ میں لاہور قلندر کو سپورٹ کرتا ہوں، اور جب فرسٹ سیزن تھا اس کا تب سے لے کے آج 9 سیزن سٹارٹ ہوا، تو میں شروع سے لے کے آج تک لاہور قلندر کو سپورٹ کرتا آیا ہوں، اور آج بھی اسی کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ اور شاہین افریدی کو تو خاص کر وہ تو ہمارے لو ہیں، اور اس کی وجہ سے تو لاہور قلندر ویسے ہی ہمارا جگر ہو گیا، تو لاہور میں لاہور قلندر کا میچ ہو رہا ہے تو پھر لاہور قلندر کو سپورٹ کرنا بنتا ہے ہمارا۔ شاہین افریدی کے بھی کافی مداح یہاں پر موجود ہیں۔ آپ بتاؤ کسے سپورٹ کر رہے ہو، کیا کہو گے، کیسے دیکھ رہے ہو؟ میں آلویز لاہور قلندر، بیکاز وی آر فرام لاہور، تو لو ہے لاہور، تو اسی لیے لاہور قلندر۔ بالکل، بڑی تعداد میں شائقین کرکٹ یہاں پر موجود ہے، دور دراز سے دوسرے شہروں سے بھی یہاں پر جو کہ کرکٹ کا بڑا ٹاکرا دیکھنے کو ہیں۔ آپ بتائیں کہ کسے سپورٹ کر رہے ہیں، کس کو جیتتا دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی ہم لاہور کو سپورٹ کرنے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سٹی ہے وہ رجحان ہے، ہم رجحان سے ہوئے ہیں ابھی صرف لاہور کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ وہ ہماری فیوریٹ ٹیم ہے۔ امید ہے کہ کون سی ٹیم آج پہلا میچ جیتے گی؟ آج پہلا میچ جو کہ پی ایس ایل 9 کا ہونے جا رہا ہے۔ جی انشاءاللہ ہماری تو دعائیں لاہور کے ساتھ ہی ہیں، انشاءاللہ ہم کہیں گے لاہور ہی جیتے۔ جی بالکل، کیونکہ لاہور میں قذافی اسٹیڈیم میں میچ ہو رہا ہے، یہاں پر مزید شائقین بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے، آپ کہاں سے آئے ہیں جو کہ کرکٹ کا میچ دیکھنے کے لیے پہلا؟ الحمدللہ ہم لوگ کوئٹہ سے آئے ہیں نا، پی ایس ایل کا میچ 9 کا میچ دیکھنے کے لیے۔ ہم نے بہت کوشش کی ٹکٹ ڈھونڈنے کے لیے، لیکن ابھی تک ٹکٹ ملا نہیں ہے نا، تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بکنگ جو ہے یہ بس تقریباً آخری دن تک جاری رہنا چاہیے۔ تو ہم بہت زیادہ خوش بھی ہیں پی ایس ایل دیکھنے کے لیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ پرامن ماحول ہے نا، خاص کر فورنرز کے لیے، تو ہونا چاہیے ہم میچ دیکھنے کے لیے۔ ہم جی بالکل، شہریوں کی جانب سے جو کہ ٹکٹس کا بھی کچھ شہری ایسے ہیں جن کو ابھی تک ٹکٹس نہیں ملی، اور وہ ٹکٹس کی جو کہ جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، رفتہ رفتہ جو کہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر جانے کے لیے جو کہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جی طلحہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، رخ کر لیتے ہیں افشاں رضوان کی جانب۔ افشاں آپ کہاں پر موجود ہیں قذافی کے اعتراف میں؟ اور طلحہ کے ساتھ کافی لڑکے موجود تھے جو ایکسائٹڈ ہے پہلے میچ کو لے کر، کیا لڑکیاں بھی آج اتنی ایکسائٹڈ ہیں؟ انتظامات کیسے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں قذافی اسٹیڈیم، لبرٹی چوک کا جو راؤنڈ اباؤٹ ہے ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ بھی شائقین کرکٹ کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور آپ نے بات کی لڑکوں کی، تو لڑکوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہ خواتین کی بھی خاصی تعداد ہے، فیملیز کی بھی کافی تعداد ہے جو کہ قذافی اسٹیڈیم کے اندر جا رہے ہیں اور میچ کو انجوائے کرنے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک فیملی ہی اس وقت موجود ہے، مزید ان سے جانیں گے کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور کتنا جو ہے وہ جوش ہے ان کے اندر پی ایس ایل کے لیے۔ مجھے بتائیے گا میم، کس کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہیں؟ لاہور قلندرز کو۔ لاہور قلندر کو سپورٹ کر رہی ہیں، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ لاہور سے ہیں، لاہور کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، وہ لاہور سے ہیں اور لاہور کو ہی سپورٹ کرنی ہے۔ چھوٹا بچہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بیٹا مجھے بتاؤ کہ کس کو سپورٹ کرنے آئے ہو؟ لاہور قلندر۔ کیوں لاہور کے اندر کو کیوں سپورٹ کرنا ہے؟ وہ تو میری فیوریٹ ہے، اس کی جو ہے فیوریٹ ٹیم ہے اور وہ لاہور سے ہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے لاہور قلندر کو ہی سپورٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جو ہے بہت زیادہ پرجوش ہیں پی ایس ایل۔ افشاں آپ کا بہت شکریہ، طلحہ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ برکت مارکیٹ وائی جنکشن ڈبل سٹوری انڈر پاس اینڈ سگنل فری کوریڈور منصوبہ
ब्यूरोक्रेसी अवामी मफाद के मंसूबे में रुकावट बन गई। महकमा खजाना की लापरवाही से पंजाब हुकूमत के मंजूरी के बावजूद CBD को 4 अरब का कर्ज जारी न हो सका। मंसूबे पर एक माह कबल काबीना ने फंड्स बतौर कर्ज जारी करने की मंजूरी दी थी। मंसूबे का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो चुका, जबकि टेंडर NLC को अवार्ड किया जा चुका है। मंसूबे के हवाले से वासा, PHA और टीपा NOC भी दे चुके हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे का संगे बुनियाद भी रख दिया था। मंसूबे के लिए फौरी तौर पर 1.5 अरब रुपए का किक स्टार्ट बजट दरकार है। CBD हुकाम की जानिब से लोन वसूली के लिए तमाम कवायद और जवाबित भी पूरे किए जा चुके हैं। जराये के मुताबिक CBD हुकाम लोन मांगने जाते हैं, महकमा खजाना का स्टाफ सीटों से गायब हो जाता है। कर्ज की फराहमी ना होने से CBD को प्रोजेक्ट शुरू करने में दुश्वारी का सामना है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बेदियां रोड आमद एलीट फोर्स पंजाब और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के सूबाई हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑफिसर्स ब्लॉक और दीगर शोबों का भी मुआयना किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के कंट्रोल रूम का विजिट किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कंट्रोल रूम से हाईवे पेट्रोलिंग के सिस्टम का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पुलिस अफसरान से मुलाकात की और जान फिशानी और प्रोफेशनल अंदाज से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब भर में बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और रोड सेफ्टी के हवाले से हर मुमकिन इकदाम उठाया जा रहा है। इस मौका पर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने कंट्रोल रूम के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रात गए बाबू साबू टूल प्लाजा का दौरा। वज़ीर आला ने बाबू साबू टूल प्लाजा को कशादा करने और रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने टूल प्लाजा को कुशादा करने और रीमॉडलिंग मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हदायत जारी की और कहा कि मंसूबे की जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रात को लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने की हदायत की और कहा कि बाबू साबू टूल प्लाजा की कुशादगी और रीमॉडलिंग से ट्रैफिक जाम का दरीना मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल होगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि बाबू साबू पर ट्रैफिक जाम रहने से शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश है कि इस मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंतखाबी धांधली करने का एतराफ कर लिया। लियाकत अली चट्ठा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी, वजीर आला और गवर्नर पंजाब को मौसूल हो गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ किया कि उनसे इंतखाबात में धांधली करवाई गई। कमिश्नर के मुताबिक उन्होंने 13 हारे हुए कौमी असम्बली के उम्मीदवारों को जितवाया। कमिश्नर का कहना है कि उन्होंने अपना इस्तीफा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर आला पंजाब और गवर्नर पंजाब को भेज दिया था, जो वहाँ मौसूल हो गया है। लियाकत अली चट्ठा अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर 12 मार्च को रिटायर हो रहे थे। MCL को सालाना बजट रिकवरी के अहदाफ की तकमील में मुश्किलात का सामना है। प्लानिंग विंग की तरह रेगुलेशन विंग भी रिकवरी अहदाफ पूरे करने में नाकाम हो गया है। MCL ने रिकवरी अहदाफ पूरे न करने पर MO रेगुलेशन को नोटिस जारी कर दिया है। MCL को सालाना बजट रिकवरी के अहदाफ की तकमील में मुश्किलात का सामना है। प्लानिंग विंग की तरह रेगुलेशन विंग भी रिकवरी अहदाफ पूरा करने में नाकाम है। रेगुलेशन विंग को फौरी तौर पर रिकवरी का अमल तेज करने की हिदायत की गई है। 3 रोज में अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट तलब की गई है। रवा माली साल रेंट की मद में 5 करोड़ की बजाय सिर्फ 21% रिकवरी की जा सकी। इन्फोर्समेंट फाइन की मद में 6 करोड़ 75 लाख का टारगेट सिर्फ 72% मुकम्मल किया गया है। PHA के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेज़ाबाजी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। लाहौर की बड़ी तादाद में देखने वाले शायकीन वहां पर पहुंचे। 2 से ज़ायद अजला से नेज़ाबाजों की भी शिरकत हुई है। मज़ीद अहवाल जानते हैं तोकीर अकरम से। जी तोकीर। जी बिल्कुल, PHA के ज़ेरे तमाम फोर्ट्रेस स्टेडियम में नेज़ाबाजी का इनेकाद किया गया है। 2 रोज़ा नेज़ाबाजी के इवेंट का आगाज़ किया गया है, जिसमें तकरीबन पाकिस्तान के तमाम अजला से जो घुड़सवार हैं उन्होंने शिरकत की है और तकरीबन 200 से ज़ायद जो हैं वो टीमें यहाँ पर पहुँची है, जबकि एक टीम के अंदर 2 से 4 घुड़सवार जो हैं वो शरीक हुए हैं और इस मौके पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में घुड़सवारी का सिलसिला जारी है। जो विनर होंगे उनको कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। PHA के ज़ेरे तमाम ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर लाहौरी जो हैं वो बड़ी तादाद में शरीक हुए हैं और उनका कहना है कि आज का ये इवेंट जो है जिसका इनेकाद किया गया है, यकीनन ये काबिल तारीफ है, क्योंकि ये हमारा सकाफती खेल है और इस सकाफती खेल के अंदर जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की गई हैं, जिस तरह से घोड़सवारी का
इंट्रोड्यूस करवाया गया है, यकीनन ये काबिल तारीफ़ है। और घोड़े जितने खूबसूरत यहाँ पर हैं और हर बंदा जो है वो इसकी तारीफ़ कर रहा है और इस खेल के ऑर्गेनाइज़ करने की तारीफ़ कर रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह का इवेंट लाहौर के अंदर होना लाहौरियों को इस बात का बताता है कि हमारी सकाफ़त के अंदर नेज़ाबाजी जो है वो एक खेल है और इसका सबको तौकीर आपका बहुत शुक्रिया। काला शकाकू ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम में दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया। अब्दुल शकूर चौधरी ने बतौर मेहमान खसूसी तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम हाफिज अब्दुल गफ्फार ने सोसाइटी के हवाले से आगाह भी किया। मुस्तकबिल के लिए शानदार डेवलपमेंट का आगाज काला शकाकू ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम में दुआई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में आसान घरों के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। मंसूबे पर चेयरमैन ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम हाफिज अब्दुल गफ्फार ने रोशनी डाली। काला शकाकू और हमारे लिए ये खुशकिस्मती है कि अब मेट्रो जो है वो काला शकाकू से चला करेगी, तो ये इसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और जब हम लाहौर से मीनारे पाकिस्तान की तरफ से निकलते हैं तो सबसे पहले ग्रीन वैली आता है। लोकेशन के लिहाज से हमारा जो है वो प्रोजेक्ट वो सबसे अच्छा है। चेयरमैन वेलकम मार्केटिंग और सेल्स पार्टनर काशिफ गौरी भी हाउसिंग स्कीम के हवाले से पुरअज़म दिखाई दिए। ये सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह काला शकाकू से बहुत करीब इंटरचेंज के मेन रोड से इसकी एंट्रेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि 150 फीट फ्रंट है इसका इस रोड का। और यहाँ पे हम बहुत सस्ते प्लॉट ऑन ग्राउंड लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑफ ग्राउंड में बहुत सस्ती। प्रोजेक्ट मैनेजर ग्रीन वैली हाउसिंग स्कीम मोहम्मद उस्मान हसीब ने स्कीम के खदोखाल से शुरका को आगाही दी। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं वो 15 लाख की पेमेंट पे हम उसको पोजेशन अनाउंस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ग्रीन वैली आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत और मेन जीटी रोड की लोकेशन के ऊपर एक कामयाब हाउसिंग प्रोजेक्ट होगा। तकरीब में प्रॉपर्टी डीलर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की और सोसाइटी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब का इख्तिताम खसूसी दुआ से किया गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अरबाज खान, सिटी 42। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म। सैफ अनवर जप्पा को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। सेक्रेटरी सर्विसेज की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर यह बताया गया है। आपको बता रहे हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म जारी हो चुका है, जबकि सैफ अनवर जप्पा को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट करने का हुक्म जारी हो चुका है। सेक्रेटरी सर्विसेज की जानिब से ये हुक्म जारी हुआ है और सेक्रेटरी सर्विसेज की जानिब से कहा गया है कि सैफ अनवर जप्पा को कमिश्नर रावलपिंडी का इजाफी चार्ज दे दिया जाए। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, क्या तफसीलात हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी सर्विसेज ज़ैद बिन मसूद जो है, जो महकमा एसएमईडी के सेक्रेटरी सर्विसेज है, उनका कहना है कि जो बाकायदा तौर पर जो है लियाकत अली चट्टा जो कमिश्नर रावलपिंडी थे उनको वापस सिविल सेक्रेटरी लाहौर रिपोर्ट करा लिया गया है और नोटिफिकेशन जो है जारी हो रहा है। जबकि सैफ अनवर जप्पा जो डीजी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी थे उन्हें कमिश्नर रावलपिंडी का फौरी तौर पर चार्ज संभालने का हुक्म जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है, प्रोसेस में है। लेकिन ये तस्दीक की है सेक्रेटरी सर्विसेज ज़ैद बिन मसूद ने कि ये फैसला हुआ है पंजाब गवर्नमेंट का। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के ज़रिए एहतमाम डिप्लोमा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 तलबा और तालिबात ने शिरकत की है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के ज़ेरे एहतमाम डिप्लोमा कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 500 तलबा और तलबात ने शिरकत की। चेयरमैन यूएसए महमूद सादिक और हेड ऑफ प्रोग्राम डॉक्टर अनायतुल हक का कहना था कि पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी हर रोज जोर पकड़ रही है, मगर अब हमारा फर्ज है कुछ पढ़ लिख कर पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाएं। तो इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान जो मैंने सारी बात की, ये बहुत एक पेचीदा मसला बन चुका है और इस पेचीदा मसले से निकलने के लिए हमने बैठ के एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। मैं आज आपको वो प्लान ही समझाने आया हूं और उस प्लान का हिस्सा सारे नौजवान हैं। इस मौका पर पास आउट होने वाले 500 तलबा और तलबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। तलबा और तलबात में डिग्रियां तकसीम करने के साथ साथ मेहमानी खुसूसी में सीनियर्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ मायदा वहीद, सिटी 42। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज के ज़रिए एहतमाम सालाना क़िराअत, नात और तकरीर के फाइनल मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ शहरों के कैंपस के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा ने नातों और तकरीर ने समा बांध दिया।
नसीराबाद हेड कैंपस में सालाना क़िरात, नात और तकारीर के फाइनल मुकाबले मुनाकिद किए गए। सीनियर तज्जिया निगार ओरिया मकबूल जान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बच्चों की तकारीर को खूब सराहा। और कुरान कहता है वक़तानाहुम फिल अर्ज़ि उममा, हमने तुम्हें दुनिया की जगहों पे तकसीम कर दिया। वजअना बिकुम लफ़ीफ़ा, जब क़यामत का वक्त आएगा तो हम तुम्हें करीब ले आएंगे, वापस ले आएंगे। तलबा फाइनल राउंड में पुरजोश अंदाज में तकारीर की और गुलहाए अकीदत पेश करके खूब दाद समेटी। इस मौके पर तलबा का कहना था कि इस तरह की तकरीब का इनेकाद काबिल तारीफ है। तकरीरी मुकाबले में रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की सीनियर मैनेजर एकेडमिक ऑपरेशन शबा नवीन सुमैद इसाजा ने शिरकत की। जीतने वाले तलबा में तारीफी शील्ड्स, मेडल्स और कैश प्राइज तकसीम किए गए। कैमरामैन रिजवान शाह के हमरा तौकीर अकरम, City 42 लाहौर। बीकन हाउस सीनियर कैंपस बहरिया टाउन में दूसरी BBT1 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने शिरकत की। बीकन हाउस सीनियर कैंपस बहरिया टाउन में दूसरी BBTMUN कॉन्फ्रेंस हुई। लाहौर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा ने शिरकत की। 4 अरकान पर मुश्तमिल तलबा की टीमों ने नेशनल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट्स और क्राइसिस समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लबकुशाई की और हाज़रीन से खूब दाद समेटी। प्रिंसिपल हुमैरा तारिक का कहना था, कॉन्फ्रेंस का मकसद मुदोबीन की सिफारती सलाहियतों को निखारने के साथ साथ उनको फिक्र अंगेज बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना है। बीकन हाउस बहरिया टाउन में सीनियर कैंपस में भी होल्डिंग दिस 3-day इवेंट व्हिच इज स्टार्टिंग टुडे और ये संडे शाम तक चलेगा, जिसमें सोशल्स भी होंगे। हमारे पास ऑल ओवर लाहौर से बच्चे आ रहे हैं, डिफरेंट स्कूल से। यहाँ पे इनको इंटरेक्शन का, डिबेट्स का, डिफरेंट सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वी जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि हम अपने बच्चों को मौका दें इंटरेक्ट करने का, कॉन्फिडेंस गेन करने का और एक्सपोजर का। इवेंट इंचार्ज सैयदा इफ्रा बाबर का कहना था, कॉन्फ्रेंस तलबा में खुद एतमादी पैदा करने के साथ साथ उनकी तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में मुआवन साबित होगी। बेसिकली ये सारे डिबेटर्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर लाहौर एंड आउट ऑफ लाहौर एज वेल। यहाँ पे सारे बच्चे आते हैं और प्रिपेयर्ड स्पीचेस के साथ आते हैं और ये असल में मॉडल करते हैं यूनाइटेड नेशंस। बच्चों को ये बहुत कुछ सिखाती है, पेशेंस सिखाती है। चेयरपर्सन उमर अरशद का कहना था, इस तरह की कॉन्फ्रेंस तलबा की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस मॉडल इवेंट जो कि सिमुलेशन है एक्चुअल यूनाइटेड नेशंस या अक़वाम मुत्तहिदा की, ना सिर्फ लोगों की पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी को इन्हांस करती हैं, तो ना सिर्फ स्टूडेंट यहाँ बोलना सीखते हैं, दे लर्न टू डॉक्यूमेंट द प्रोसेस ऑफ दैट एज वेल। इस तरह से उनकी लीडरशिप एबिलिटीज़ भी इन्हांस होती हैं, उनको पब्लिक स्पीकिंग भी आती है एंड द गेट अ जस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन एज वेल। कॉन्फ्रेंस आइंदा 2 रोज तक बीकन हाउस सीनियर कैंपस बहरिया टाउन में जारी रहेगी। कैमरामैन अली अदनान के हमरा समरा फातिमा, City 42। SOS चिल्ड्रंस होम जौहर टाउन में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तकरीब में अदाकाराओं और एक्टिविस्ट बराए इंसानी हकूक फरियाल गोहर ने खसूसी तौर पर शिरकत की है। SOS चिल्ड्रंस होम जौहर टाउन में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। तकरीब में अदाकारा और एक्टिविस्ट बराए इंसानी हकूक फरियाल गोहर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वाइस प्रेसिडेंट SOS चिल्ड्रंस विलेज रुबीना अली भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब में मौजूद रहीं। हर बच्चा जो किसी कम्पिटिटिव प्रोसेस से गुजरता है, किसी मुकाबले से गुजरता है, हर बच्चा जीतता है। हर बच्चा जीतने के लिए ही करता है और उसमें हार जीत का सवाल नहीं होना चाहिए। मैं इस पर फर्मली बिलीव करती हूँ, इस पर मुझे यकीन है कि पार्टिसिपेशन जो है उसमें आपकी मौजूदगी, आपका जज्बा, आपका जोश और फिर आप अपने आप को बेहतर करते हैं। बच्चों के ऊपर तो बहुत अच्छे असरात होते हैं। पढ़ाई तो होती है, बच्चा पढ़ता भी है, लेकिन जो स्पोर्ट्स है वो तो बच्चा खुशी खुशी करता है बिकॉज इट्स अ वर्जिश है और जिस्मानी उनका एक खेल कूद, और उसमें स्पोर्ट में सबसे बड़ी बात है कि बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, हार जीत सीखते हैं कि हर कोई जीतता नहीं है, हारता भी है। बच्चों ने स्पून रेस, टावर रेस, सीक रेस, म्यूजिकल चेयर, रिंग डाइव, ताइक्वांडो और दीगर दिलचस्प खेलों में हिस्सा लिया। फौजिया शाहिद, शाहिद हमीद, खालिद मसूद और दीगर मेहमानों ने भी खसूसी शिरकत की और बच्चों की सलाहियतों को खूब सराहा। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमान खसूसी ने जीतने वाले बच्चों में अवार्ड तकसीम किए। कैमरामैन अली अदनान के साथ उसफा फातिमा, City 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।